Assalamu alaikum, everyone. Welcome to another episode of Success Navigation. And my name is Hasib. I'm the founder of Brankit. And today I'm here with Awais Amin. Obviously, everyone of you know, all of you know him. And his background is from MBBS, but he converted to being an Amazon seller. And from there, he was first in Extreme Commerce as a trainer. And from there, he continued his own services agency, which is one of the top services agency in Pakistan right now. So I think Awais Amin is the best person to introduce himself. So Awais bhai, I would like you to start a little bit about your introduction and background, and from there we can take on towards the main topic. I guess you have given the introduction about me already. If we talk about brief introduction, this is all. Yeah, I started from MBBS, and then I was looking for something startup kind of thing. But then I stumbled upon the ad of Extreme Commerce. One of my friend, he kind of just pushed me during our exam days that if you're really interested in starting up your own business or startup, you should um, you should attend the seminar. And yeah, at that time it was like you don't need any investment, you don't need any relationship in Europe, maybe or USA, to create the idea. You just need to learn the skill and I'll do the rest of the part. This is what Sunny used to say, and I believe same happened. Actually same happened. I just only focus on learning skill, nothing else. And then yeah, definitely after that I remained. I was not part of Extreme Commerce, honestly speaking. I was more like a volunteer trainer, and then after that, I focused on my own agency. And yeah, agency is doing mix and match two parts. One is done for you services, and the other is the training part for the local and somewhat in a very close group international audience as well. Okay, got it. Fair enough. So, Awais bhai, just to get a brief overview on what exactly is happening right now in the e-commerce world. So, as I mentioned, like in my last in my last post yesterday. So, currently, if you see the whole US market is standing at like 16% of e-commerce versus total retail, and if we exclude the share of like that kind of retail which can never come online, for example, car purchases and hotels and bars, if you exclude that, the number comes around like 20-22%. So the point here is e-commerce percentage year over year is converting into the it's taking the share of retail, and at the same time the whole retail industry is also growing year over year, because obviously people get on to purchase more and more products with time, and that revenue is also getting up. So my point here is, how do you see this going towards the future, and what new opportunities or what data analysis you have done at your end, understanding this growth, and what new opportunities are coming down the line? Um, Let me share another perspective of stats as well. Um, the e-commerce, the share of e-commerce is 12 to 14% of the total commerce happening in USA. So it's like 85 to 87% commerce activity is still happening in retail, and only 12 to 14% is happening in the e-commerce side. Yeah. Honestly speaking, what my observation is, the e-commerce growth rate has slowed down already to the pre-pandemic levels. Like there were crazy growth rates during the COVID time period, but the e-commerce growth rate has settled down or slowed down back to the pre-pandemic level. It doesn't mean it's not growing; it means it's growing at the pre-pandemic pace now, and the Yeah. retail has gained its growth portion again. Like the retail has gained back its portion, but still, nevertheless, it should not affect our decision up till now at this scenario, because definitely e-commerce is growing at a good pace. There's no doubt about it. The good thing is, the way marketplace stuff is growing, the way Amazon, Walmart, and even I would say Shopify, which is marketplace like of thing, these are growing. The scope is getting bigger day by day. People are more into the marketplace stuff, to give it preference for the starting point of their brand, rather than starting with the D2C brand. If you have Hmm. listened to the story of Zesty Pop and Hero Cosmetics, I'm not sure if you heard that.
those brands have kind of stabilized the situation of the possibility of the example that if you grow your brand from Amazon, you can grow it to multi-million exit as well. Like Zestipo started in 2017, and they just did their exit last year of 630 or 40 million dollar. Same for Hero Cosmetics. They started again back in the time 2016-17, and they also got an exit of 610 million dollar. So it's like the growth is defined, and these examples have set the precedent already, and people are more into the marketplace part now as compared to the previous years. गॉट इट। अच्छा अवैस भाई, इसमें अब थोड़ा एक डायरेक्शन को शिफ्ट करते हैं। इन नंबर्स को जैसे हमने बात कर लिया कि ये ग्रोथ तो हो रही है, तो अब अगर हम रीसेंट बात करें 2023 में, तो अगर एक न्यू एक एक बंदा सोच रहा है कि उसने अमेजोन पे, तो इज इट स्टिल अ वायबल ऑप्शन, और व्हाट एग्जैक्टली इज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी अराउंड दैट? 2023 में आई बिलीव कि अमेजोन पे ब्रांड लॉन्च करने की अगर बात करें तो वो प्रीटी एक्सपेंसिव ऑप्शन हो चुकी है। अच्छा, एक्सपेंसिव ऑप्शन होने में मेरा ये मतलब नहीं कि एडवर्टाइजिंग महंगी हो चुकी है और जो है ना वो मार्केटिंग पे सर्वाइवल मुश्किल है, ऑल दैट। लेकिन जिस तरीके से मार्केट का एल्गोरिदम अप टू डेट होता जा रहा है, अगर आपकी प्रोडक्ट या अगर आपका डिजाइन बेहतर नहीं है बाकी कंपेरेटर्स से, तो इवेंचुअली आपको डिफिकल्टी फील होने लग जाती है। तो अगर मैं आपकी उस बात को लेके जाऊं, बजट को ब्रेक डाउन करूं, तो अभी एक टाइम था 2017 18 19 में कि बात आती थी कि जी आप किसी भी बजट में यूएसए में, यूरोप में कहीं भी अपने ब्रांड को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इन 2023 अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, तो हमने लिमिट कर दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा बंदा है जिसके पास अगर $100,000 से नीचे का बजट है, वी वॉन्ट डू प्रोडक्ट लॉन्च फॉर देम। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है अगर आपका एक एक डिसेंट बजट है, विच इन माय ओपिनियन इज मिनिमम मार्जिन। या आप बॉर्डर लाइन पे भी बात करो तो दैट इज 50-60 thousand डॉलर, एंड आइडियली 80,000 to $100,000। उसकी ना कुछ रीजंस है, मल्टीपल रीजंस है। एक नंबर वन ये है कि जिस तरीके से अब ब्रांड्स को जो स्टेबिलिटी पहले स्टार्टिंग में एक टाइम पे 2019 या 18 या 2020 के टाइम पे मिलती थी कि ऐसे स्टार्ट में गए और आपने सिंपल पकड़ा, लेट्स से हसीब ने ब्रैंकेट कर लिया, तो मैं भी ब्रैंकेट को सिंपल अपना नाम करके लॉन्च कर लूं, इमेजेस हसीब से अच्छी कर लूं, खत्म, ठीक है, सही बात। चल पड़ेगा ब्रांड। जो तब से लेके अब तक चेंजेस आई है ना, अगर आप मार्केट प्लेस पल्स के स्टैट्स को देखें या बाकी चीजों को देखें, तो न्यू एंट्रेंट्स ई कॉमर्स की तरफ बड़े ज्यादा आए हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम पीरियड। अच्छा, अब उससे हुआ क्या है, पेस ऑफ इंक्रीमेंट इन कंपटीशन वो बहुत बढ़ गया। मतलब जिस परसेंटेज से आपका कंपटीशन ग्रो करता ना, वो बहुत बढ़ गया। एक ये एलिमेंट है। उससे अब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक 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 फॉर एग्जांपल ये माइक लॉन्च किया है और बाकी बंदे भी मतलब आपने लॉन्च किया हुआ था, मार्केट चल रही है, मार्केट में मैंने भी ये लॉन्च कर दिया। अब इसी डिजाइन के काफी ज्यादा सेलर्स बड़े क्विक टाइम पीरियड में, या आई वुड से बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड में एंटर होते जाते हैं। पहले अगर लेट्स से मार्केट में 400-500 बंदे 3 साल में आते थे, अभी वो टाइम पीरियड 1 साल में आ गया। तो होता क्या सही। कि कंपटीशन जो है ना वो आपका शेयर डाइल्यूट हो जाता है। पहले मार्केट में थे 10 बंदे, 100 की ट्रैफिक थी, हर बंदे को 10-10 सेल मिल रही थी। अभी मार्केट में ट्रैफिक 100 की ही है और जो या 10 100 की से है थोड़ा सा इंक्रीज कर देगी, मतलब, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेगी जितना मतलब कंपटीशन उस कर रहा है। पेस से डिमांड ग्रो नहीं करे जिस पेस से कंपटीशन ग्रो कर गया। आप इमेजिन कर लेंगे चले 100 ही है डिमांड और कंपटीशन आपका जो है ना वो 10 की बजाय 20 सेलर आ गया, तो हर एक को 10 सही। की बजाय 5 सेल मिल रही है। अब इस सारे सिनेरियो में जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, जब हम कहते हैं कि पीपीसी कंपेटिटिव हो रही हैं, चीजें मुश्किल हो रही हैं सर्वाइव करना, वो इस वजह से है बिकॉज यू आर ऑफरिंग नथिंग एक्स्ट्रा, और जो आप ऑफर कर रहे हैं वही बाकी 20-30-40 बंदे भी ऑफर कर रहे हैं। यहीं पर ही अगर आप जो पीपीसी एजेंसीज चला रहे हैं बंदे, या जो ब्रांड्स पे अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे बात करें, उनकी ऑब्जर्वेशन उनसे पूछें, एक ये सिनेरियो है, मेरी वो प्रोडक्ट है जो मार्केट में ऑलरेडी 30-40 बंदे दे रहे हैं। एक दूसरा सिनेरियो है,
मैं मार्केट में कुछ नया डिजाइन लेके आता हूँ। मे बी मैंने कोई D2C का अच्छा डिजाइन पकड़ लिया, मे बी मैंने सोशल मीडिया से अच्छे डिजाइन को पकड़ लिया, मे बी मेरे सप्लायर के पास कुछ डिफरेंट डिजाइन था जो कि अमेजोन पे नहीं अवेलेबल, मैंने वो पकड़ लिया। हुआ क्या उससे, मेरी कन्वर्जन एज कंपेयर टू मार्केट स्टैंडर्ड्स कंपैरेटिवली बेहतर है। कंपैरेटिवली मैं कुछ नया लेके आ रहा हूँ, या मैं क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ, या प्राइस पे, या कस्टमर एक्सपीरियंस पे। उससे मेरी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग भी एक काबू में रहेगी, सही। मुझे ऑर्गेनिक सेल्स का चंक भी मिलेगा, और प्रॉफिटेबिलिटी या मेरे ब्रांड की सस्टेनेबिलिटी भी आ जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ शिफ्ट इन मार्केट डायनामिक्स, ये अब पॉसिबल नहीं रहा कि आप बड़े छोटे बजट में कर सको। छोटा बजट कब होता था, जब कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि कॉपी सही। पेस्ट पे साल डेढ़ दो बार तंगी होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपका ब्रांड का लाइफ साइकिल 4-5 साल का नहीं है, तो आप एग्जिट कैसे करोगे, ग्रो कैसे करोगे, बड़ी मुश्किल है। अगर आप साल डेढ़ में, तो आपको आर भी रिकवर नहीं हो रही होती। तो क्योंकि ये चीज ने मुश्किल कर दिया, और आपको कुछ नई इंप्रूवमेंट लाना है, उस इंप्रूवमेंट की कॉस्ट है, टाइम है, ठीक है, जिसके चक्कर में मेरी नजर में मतलब आफ्टर गिविंग ऑल दिस एविडेंस एज अ बैकअप, आई ट्रूली बिलीव कि अब बजट जो है वो पहले से ज्यादा हो चुका है रिक्वायरमेंट में, अच्छा, मार्केट में अवैस कम्पीट भाई, करने एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कि पहले जो कॉपी पेस्ट होता था वो इट सेल्फ, वो ब्रांड बिल्डिंग तो पहले थी ही नहीं। मतलब मोस्टली वो कॉपी पेस्ट से लोग एक तरह से अमेजोन के गैप, या एक वो कह लें कि जो गैप था मार्केट में, वो यूटिलाइज करके एक अपना एक मतलब कुछ यूनिट सेल करके कुछ रेवेन्यू बना रहे थे। अभी जो में। गेम है वो इन अ सेंस ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आया, जहाँ पे आप मार्केट का गैप एनालाइज करके प्रोडक्ट एडिशन या फिर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके मार्केट का वॉल्यूम कैप्चर कर रहे हो, और ये एग्जैक्टली exactly फिर ब्रांड बिल्डिंग की सेंस बनती है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर वही सर्वाइव कर रहा है जिसको ब्रांड बिल्डिंग का एग्जैक्टली exactly पता है। और इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल ऐड करूंगा ना, अगर आप जो है वो बीच सैंडल्स बेच रहे हो, ठीक है, हम्म। यूवी मार्केट चाइना में होलसेल में बिक रहा है, आपने भी सैंडल पकड़ लिया, आपने अपना नाम चेंज कर दिया, चलो वो व्हाइट लेबल चल रहा है ना, व्हाइट लेबल है। अच्छा, अगर आप वही अपने सैंडल के नीचे उसके जो बॉटम होता है उस पे फॉर एग्जांपल लिखवा देते हो आई लव सन या आई लव बीच, और जैसे जैसे बंदा चलता जा रहा है तो हर कदम पे ये निशान आता जा रहा है, तो चलो यू हैव डन समथिंग फॉर प्राइवेट लेबल, मतलब स्मॉल ट्विक्स। आपका मॉप जो है वो एक स्टैंडर्ड आ रहा है मार्केट में, आप उसका एक्सटेंडेबल बार ले आते हो, स्मॉल ट्विक्स। तो प्राइवेट लेबल पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग होता ही नहीं था, इंक्लूडिंग अस। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम करते थे, कोई नहीं करता था, एवोल्यूशन आई है करने में। तो वो व्हाइट लेबल चलता था, अब आके दुनिया एक्चुअली प्राइवेट लेबल करने लगी है, जो कि सीजन प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले बंदे हैं। तो अब आके ये आहिस्ता आहिस्ता ये एक्वन बिल्ड हुआ है, इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी। इवन सही। इंटरनेशनल मार्केट में मैं ये नहीं कहूंगा कि उधर बहुत देर का चल रहा था, हम अभी हैं। ओवरऑल मार्केट में ये इंक्रीजिंग कंपटीशन के बाद ये एक एवोल्यूशन आई है बेटा। सही। अच्छा, अभी हम जब लॉन्च पे जाते हैं, हम फिर जो आपकी वाली बात कि अब हम फिर सिंगल प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे। हम एक नीश टारगेट करके उस नीश में अपनी एक, लेट्स से विद 4 to 5 SKUs और उसकी वेरिएशंस के साथ फिर जाके लॉन्च करेंगे, ताकि नीश को हम कैप्चर कर सके। राइट, यही स्ट्रेटजी अभी रिसेंटली एप्लीकेबल। नहीं, एग्जैक्टली अगर मैं इसकी आपको मिसाल दूं, मतलब मिसाल से चलो समझना आसान हो जाएगा। एक एग्जांपल है कि हाँ, मतलब एक तरफ से हाँ भी, एक तरफ से ना भी, कैसे को मैं आपको बताता हूँ। मिसाल अगर हम ले लें स्ट्रेस बॉल्स की, ठीक है, स्ट्रेस बॉल की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो अभी आप सिंपल एक स्ट्रेस बॉल लॉन्च कर रहे हो, तो ठीक है, आपका मार्केट में जो भी एक आपको कन्वर्जन मिलेगी, और आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, आपकी ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपकी कन्वर्जन पे, ठीक है, क्योंकि स्पेंड हर बंदा कर लेता है। अच्छी कॉस्ट जो है वो ठीक है, जो अलीबाबा के थ्रू या ग्राउंड सोर्सिंग के थ्रू हर बंदा कर रहा है। एक एक बार एक्यूमेंट है उसका। क्या हम्म। मार्केट ज्यादा क्लिक करेगी, क्या डिजाइन मार्केट को ज्यादा क्लिक करेगा, वो एक एक डेफिनेटली एक एक टैलेंट है या एक स्किल है जिसको एक्वायर करने की भी जरूरत है। अच्छा, अगर तो आप सिंपल कर रहे हो ना, क्या उसको कहते हैं, स्ट्रेस बॉल, एज कम्पेयर टू यू, अगर मैं आता हूँ और मैं स्ट्रेस बॉल में एक माइक्रो नीश को प्रॉपर्ली डोमिनेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस बॉल है जी एक ऑफिस के बंदों के लिए, दूसरी उसकी माइक्रो नीश है टॉयज बच्चों के लिए, ठीक है, फिजिट्स के हम्म। तौर पे यूज हो रहा है। तो मैं किसी एक निश को पकड़ के उसमें इतनी ज्यादा वेरिएशन वैरायटी दे रहा हूँ कि लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बन रहा हूँ। तो मैं उस नीश में ठीक ठाक रेवेन्यू कमा पाऊंगा, डोमिनेट कर दूंगा।
रादर देन कि मैं कहूँ अच्छा नहीं मुझे टॉयज की नीश में 5-6 एसक्यूज करूंगा, वो मीनिंगलेस है। अगर मैं स्ट्रेस बॉल में भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉयज की किसी दूसरी माइक्रो नीश या सब कैटेगरी में भी एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तीसरी सब कैटेगरी में भी एक दे रहा हूँ, उससे बहुत बेहतर है कि मैं एक सब कैटेगरी पकड़ूं, उसके स्टैट्स को एनालाइज करूं, और उसमें लोगों को जो जो डिफरेंट नीड्स है ना, या जो जो डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप आ सकती है, उसको पूरी होलिस्टिक कवरेज दूं। तो वो जो है वो मेरी कन्वर्जन भी बूस्ट करेगा, वो मेरी ब्रांड लॉयल्टी भी बिल्ड करेगा, और वहां पर जब मैं उस मार्केट को कंकर कर लूं, फिर मैं दूसरी सब कैटेगरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से क्रॉस ओवर करता जाऊंगा। सही। तो वही नीश बिल्डिंग की तरफ जो है वो एक लॉन्च के टाइम अगर फोकस करें तो एक ये एक एडवांटेज है हमारे पास कि हमारी काफ़ी सारी चीज़ें उससे इम्प्रूव हो सकती हैं। अच्छा, इसी हाँ, पॉइंट से डेटा मैं आगे, बेस। जी बिल्कुल जी। इसी पॉइंट को मैं आगे एक चीज़ से कनेक्ट करता हूँ कि जब एक ब्रांड लॉन्च होता है तो एक सर्टेन स्टेज पे जाके वहाँ पे आपको पता है कि मेरी एक ग्रोथ जो है यहाँ पे स्टेगनेंट सी एक हो गई है, एक टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है। एट द सेम टाइम हमें पता है कि मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह भी बढ़ रही हैं। अब अगर मुझे यहाँ से ग्रो करना है तो या तो मैं एक्स्ट्रा फंड रेस करके या कुछ भी करके उसमें ऐड ऑन करूँ और उसको फिर ग्रो करूँ वहाँ से आगे। अच्छा, यहाँ पर जो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन वाला पार्ट है कि जब हम वो, या तो हम सोच रहे हैं लेट से यूएस में हूँ, यहाँ पर ही ग्रो करूँ तो यहाँ की क्या कॉस्टिंग होगी, या फिर मैं इसको मल्टी चैनल लेकर जाऊँ, या फिर मैं कंट्री वाइड शिफ्ट करूँ। तो यहाँ पर फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि यहाँ से हम फिर कैसे और क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है ब्रांड एक्सपेंशन के लिए फर्दर? अच्छा, इसमें ना मैंने कुछ कैटेगरीज में ऑब्जर्व भी किया है, कुछ में मतलब लॉन्च भी किया है, कुछ में पार्ट पे रहा हूँ, तो एक काइंड ऑफ मिक्स एंड मैच एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, हम्म। जिसमें कंपेटिटर्स में एप्पल ब्रांड भी था, ठीक है, जिसमें कंपेटिटर्स में फिलिप्स भी है, मतलब जायंट्स, ऐसी सही। निशेस जिनको हम आमतौर पे कहते हैं रिजेक्टेड रिजेक्टेड, इसमें नहीं जाना उस तरह के। तो जब मेरी ये आमतौर पर कोशिश होती है कि जब आप एक एक लेवल पे स्टेगनेंट हो गए हो, इवन दो ठीक है आप प्रॉफिटेबल हो नहीं हो, या आप कह लो कि मतलब फर्दर ग्रोथ के लिए कैश है नहीं है, वो एक एक सेपरेट बात है, लेकिन अगर आप एक चीज पे स्टेगनेंट हो चुके हैं ना, तो जो भी आपकी नेक्स्ट ग्रोथ की मूव है ना, वो सपोर्ट करे आपकी ऑलरेडी जो पोजीशन है उसको। सही। मिसाल इसके देता हूँ कि हमने जब मतलब लोग रिव्यू स्ट्रेटेजीज अक्सर लगाते हैं ना कि जी आप जो है ना वो इंसर्ट कार्ड डाल लो और आप इतने पे ऊपर ये वो कुछ कर लो, लोगों को रिक्वेस्ट रिव्यू करते रहो, इस तरह की सारी बातें। क्यूआर कोड हम लगा लो। क्यूआर कोड लगा लो, कुछ इस तरह की चीजें कर लो, वो कुछ इसमें वो जो है ना वो भी चलता है, प्रीमियम कुछ ऑफर भी करो इंसर्ट कार्ड में कि जी हम आपको कूपन देंगे या वो गिफ्ट कार्ड देंगे, इस तरह की चीजें। अच्छा, हमारा क्या चलता था कि एक एक प्रोडक्ट अगर आप उसको यूएसए में कर ही रहे हो, तो एक रिव्यू वेलोसिटी वाला एलिमेंट है, और डेफिनेटली ये काइंड ऑफ एक मोड बन जाता है कि आपके जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, आप उतना ही जो है वो अच्छी आपकी कन्वर्जन भी पड़ती है, उतना ही आपका अच्छा एक ऑथेंटिसिटी वाला एलिमेंट भी आता है, तो 10 तरह की चीजें। तो मेरी ये बड़ी कॉमन हैबिट है कि मैं एक प्रोडक्ट को पकड़ा, अच्छा उसको बाकी क्रॉस दूसरे जो अमेजोन के कंट्रीज में है मार्केट प्लेस, उन पे चेक किए इनके स्टैट्स के हैं, यूके, जर्मनी, कनाडा, इवन मैं तो दुबई तक भी जाता हूँ, ठीक है। सही। सिंपल सेम एसएम को उन सारी मार्केट प्लेस पे चला दिया, और उधर इन्वेंट्री भेजी प्रॉपर्ली, यानी कि यूएसए से हो रही है, उन सब जगह पर इन्वेंट्री भेजी, और नॉट इन द एग्रेसिव सेंस, लेकिन चला दिया उसको। अब होता क्या है, मेरे सेम एसएन पे 5 मार्केट प्लेस से सेल्स आ रही है, 5 मार्केट प्लेस से रिव्यूज आ रहे हैं, जो मेरा कंपेरेटर है वो उसी एक मार्केट प्लेस में लगा हुआ है पेन है, तो मुझे उससे ज्यादा मेरी रिव्यू वेलोसिटी ज्यादा है, डाउन द रोड 1 साल में मैं उससे काफी आगे निकल जाऊंगा ऑर्गेनिकली, नेचुरली, विदाउट प्लेइंग एनी ब्लैक एडिश थिंग। तो उसमें वो एक इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो पहले तो एक प्रेफरेंस होती है कि अच्छा जिस मार्केट प्लेस का आइडिया है, जिस पे ग्रिप है, उसी पे ग्रो करो। अब सेकंड बात आ जाती है दूसरे मार्केट प्लेसेस पे जाना, वॉलमार्ट की बात करना, शॉपिफाई की बात करना। कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरी, आई डोंट नो कि मतलब ऑडियंस की क्या है, या मुझे मैंने कुछ इसको वैलिडेट नहीं किया हुआ, लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वॉलमार्ट पे एज सच अभी जाना मेरी नजर में यूजलेस है। ठीक है, आप चले गए हो और जो है वो आपने लिस्टिंग फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस लगा दिया है, लेकिन अगर आप एफर्ट वर्सेस उसके बेनिफिट को गेज करो, तो बहुत कम बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वॉलमार्ट का मैंने तकरीबन 8-10 ब्रांड्स को वॉलमार्ट पे एक्सपीरियंस किया है, सही। अमेज़न पे जो सेल आ रही है उनके मुकाबले में 5% 7% से ज्यादा का बिल्कुल। वॉलमार्ट का
ठीक है। तो वो उससे बहुत बेहतर है कि आप मूव कर जाओ शॉपिफाई की तरफ। अच्छा, अब अगर शॉपिफाई पे उसकी ग्रोथ की बात आती है, बेसिकली ग्रोथ जो है ना वो मल्टी फेसेट है। एक फेसेट ये है कि अमेजोन पे डिफरेंट कंट्रीज में चल जाओ, पहला। दूसरा फेसेट ये है कि अच्छा भाई अपनी नीश में ही डिफरेंट जो है वो वेरिएशन ऐड करते रहो, ग्रोथ पे स्टैग्नेंट क्यों बैठे हो, उसको होलिस्टिक कवरेज दो। अच्छा, तीसरा फेसेट है कि जी उस नीश में आप मल्टीपल डिजाइन कवर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल लेमन स्क्वीजर प्लास्टिक का भी है, तो स्टेनलेस स्टील का भी है, तो वुड का भी है, तीनों वुड का का काम भी है। एक कवरेज दे रहे हैं। एक दूसरी मिसाल ये है कि अच्छा भाई लेमन स्क्वीजर के बाद अभी आ जाओ कुछ फॉर एग्जांपल लेमन कटर पे, या फॉर एग्जांपल गार्लिक प्रेस पे। सेम आपकी एंड यूजर को जो उसके इस्तेमाल में दूसरी चीजें आती हैं, अगर वो आपकी प्रोडक्ट जो भी नहीं हंट करे उस पैरामीटर को क्वालिफाई करती है, तो वो लॉन्च करते जाओ। चौथी अप्रोच है कि आप जो है वो क्रॉस मार्केट प्लेस जाओ, विच इज इन माय ओपिनियन वॉलमार्ट नहीं, शॉपिफाई। शॉपिफाई के लिए जब हम जाते हैं क्रॉस करते हैं, तो उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर तो वो आपकी प्रोडक्ट कोई $50 से नीचे नीचे वाली है ना, इतना खास फायदा नहीं होता। अगर आपकी प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस रेंज इसके बीच में है, हाँ, तो देन आई हैव सीन अकाउंट्स which are doing maybe $3 to $5 million per month on Amazon, और जीरो पीपीसी उनके ऊपर। सही। एक तो ये क्लेम बड़ा है, और मतलब ये जीरो जीरो पीपीसी से इसको जरा एक्सप्लेन करें, जीरो पीपीसी से क्या मतलब? पीपीसी नहीं चलाते हैं Amazon के अकाउंट्स, टोटल पीपीसी नहीं। ऑर्गेनिक। ना ना ना, टोटल ऑर्गेनिक, टोटल एक्सटर्नल ट्रैफिक। टोटल सारी एड्स चल ही इंस्टा पे रही हैं, सारी एड्स चल ही सही। फेसबुक पे हैं, सही। रेडिट एड्स चल रही हैं, सारा इस तरीके से है। और उसी के थ्रू रैंक भी हैं और कमा भी रहे हैं। और उनको उनकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में जो कॉस्ट प्रोडक्ट एक्विजिशन है वो ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है। देयर इज नो गुड और बैड, ये नहीं कह रहे कि पीपीसी है ही गलत, ये नहीं कह रहे कि बाहर जाए गलत। लेकिन एक बंदे ने स्मार्ट मूव की, उसने कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि मेरी कॉस्ट प्रोडक्ट एक्विजिशन Amazon पे क्या है, इंस्टा पे क्या है, लेट्स से आप कह लो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू क्या है, और आप डालो फॉर एग्जांपल रेडिट एड्स डाल लो, टिकटॉक एड्स डाल लो, उसने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। जहां पर उसको कॉस्ट पर एक्विजिशन कम मिल रहा है, उसको उसने प्रेफरेंस दी और उसके थ्रू डाइवर्जन की Amazon की तरफ, एंड दे आर गेटिंग जी। ग्रेट रिजल्ट्स। तो ये सही। चार फेसेट हैं, देन यू टेक डिसीजन कॉस्ट के लिहाज से और पोटेंशियल के लिहाज से कि किस फेसेट में आपकी ग्रोथ ज्यादा है। तो लेकिन एक एक चार दरवाजे खुलते हैं, उनमें से आप देखते हो अच्छा प्रेफरेंस में किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे डालना है, और उसके हिसाब से आप ब्रांड की ग्रोथ को प्लान करते हो। अच्छा, शॉपिफाई पे ना रिसेंटली हमने एक स्ट्रेटजी जो है, हमारा एक नीश ब्रांड है, मिनिएचर की, एक बहुत स्मॉल नीश है। तो उसके अंदर हमने क्या किया है कि हम अमेजोन से ट्रैफिक शॉपिफाई पे लेकर आ रहे हैं थ्रू क्यूआर कोड्स। उसमें वही है कि बोनस वाला एक एलिमेंट उसमें ऐड किया, ई बुक्स टाइप, वो हमने कन्वर्ट करवाया शॉपिफाई पे। अब शॉपिफाई पे हमारा फिर स्टोर है, और अमेजोन और उसकी प्राइस में भी डिफरेंस है। तो वो क्या हुआ कि वो कस्टमर वहाँ पे बिल्ड हो गया, जब वो नेक्स्ट टाइम परचेज करने आ रहा है, तो वो शॉपिफाई पे आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रोथ हो रही है हमारी। तो ये है कि शॉपिफाई तो एक कंट्रोल भी है वहाँ पे, और आप मार्केट प्लेस पे भी डिपेंडेंट नहीं हो। तो जब हम इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन साथ ग्रो करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन हो सकता है काफ़ी ब्रांड्स के लिए। हाँ, लेकिन वही बात है, कुछ फिल्टर्स हैं। हम्म। ठीक है, Amazon से Shopify पे लाना है, तो ज्यादा उसकी एक इंटेंशन आ जाती है कि आपका आप अपने कस्टमर का डाटा ऑन करो। वो बिल्कुल। इंसर्ट कार्ड आप कह लो, ठीक है, उसमें जो है ना वो आप जो है वो 2 ईयर की वारंटी वाला एलिमेंट कह लो, उसमें कुछ भी आप एक वैल्यू दे रहे हो। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इंसर्ट कार्ड पे कुछ भी तो तीन चार मॉडल्स हैं जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उसको ट्रेयर हंट करके एक चीज आती है कि अच्छा आपको एवरी 14 डेज के बाद हम एक पर्टिकुलर गिफ्ट कार्ड देंगे जिसकी $200 की वैल्यू है। या आप कह सकते हो कि आपको अगर मेरे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल एसक्यूज हैं, तो इसके बाद आपको जो है वो 15% लाइफ टाइम डिस्काउंट है मेरे सारे एसक्यूज पे। इस तरह की तीन चार चीजें आ सकती हैं। तो जैसे ही उसको डाटा करने के लिए या उस पर क्लिक करता बंदा, वो सीधा जाता है शॉपिफाई पे। उधर साथ ही पिक्सल डाल दिए, फेसबुक का, मतलब सारे, एक गूगल का डाल दो, एक फेसबुक का डाल दो, 70% कवरेज तो यहीं पर मिल जाती है। अब आपको पता है यार ये बंदा, और सेकंड नंबर पर उसको उसका मेल आईडी कलेक्ट कर लो टू मेक हिम एलिजिबल फॉर दी जो भी आप उसको गिफ्ट दे रहे हो या जो भी आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो उसके लिए।
एक मेल की फॉर्म में डाटा आ गया, एक पिक्सल की फॉर्म में डाटा आ गया। ये आपकी लिस्ट ग्रो करती जाती है, तो और आप पर्टिकुलर एक नीश के अंदर ही या एक पर्टिकुलर माइक्रो नीश या एंड यूजर के साथ ही ग्रो कर रहे हो, तो कल को तो सिंपल उस लिस्ट को आपने अपनी प्रोडक्ट शेयर करनी है और बड़े कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं, बड़ी अच्छी चीज आती है। तो वो एक डिफरेंट है। ऐसी है एक क्योंकि होता है यूजर है कि आप शॉपिफाई पे एड्स चला के आ रहे हो, उसमें प्राइस हम्म, पॉइंट अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट का, अदरवाइज यू डोंट गेट सक्सेस। तो दो डिफरेंट यूजेज हैं। सही। हाँ, ईमेल लिस्ट के हवाले से एक पॉइंट ये है कि आपसे कोई भी मार्केट प्लेस जा सकता है, मतलब अकाउंट बैन हो सकता है या A to Z कुछ भी हो सकता है, बट ईमेल लिस्ट आपके हाथ में है। और अगर आपको अपनी नीश पता है तो आप उसको किसी भी टाइम, और आपका ब्रांड की एक वैल्यू है तो आप उसको किसी भी तरह से यूटिलाइज करके एक फ्यूचर का एक लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजाइज प्लान उसके अराउंड बनाकर उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ईमेल लिस्ट में ये प्लस पॉइंट हमेशा रहता है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस। अच्छा अवैस भाई, इसको एक और पॉइंट से यहाँ से थोड़ा सा जैसे अब रिसेंटली अमेज़न की मार्केटिंग जो है, जिस तरह अभी हमने बात की कि एक विद टाइम इंक्रीज होती जा रही है, कंपेटिटिवनेस बढ़ती जा रही है। तो रिसेंट जो एक्सपीरियंस किए हैं उसके हवाले से पीपीसी में रिसेंटली क्या क्या स्ट्रेटजीज जो हैं, इन शॉर्ट कुछ पिन पॉइंट्स जो काम कर रही हैं और जो आपको लग रहा है कि एल्गोरिथम थोड़ा सा इस साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो इस हवाले से अगर आप कुछ पॉइंट ऐड कर दें तो। पीपीसी के लिहाज से तो देखें, अगर आप स्टैट्स इनके पढ़ते हैं तो ये जो मार्केट प्लेस पल्स है इसकी आप स्टैट्स पढ़ लें, या डाटा हो के उसके स्टैट्स पढ़ लें, या एड बजर स्टैट्स शेयर करता है, तो उनका तो ये कहना है कि सीपीसी 2022 में एज कम्पेयर टू 2021 इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये एक उनकी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, एक है प्रैक्टिकल अकाउंट पे काम करके उसकी ऑब्जर्वेशन, तो आईसी के इंक्रीमेंट आया है काफी। ठीक है, और खास तौर पे एक जो पैटर्न वो ऑब्जर्व किया है कि एक एक डिफरेंस होता था व्हेन यू लॉन्च अ ब्रांड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में, और उसके बाद जब आपका ब्रांड कुछ सोशल प्रूफ ले लेता है, कुछ स्टेबिलिटी ले लेता है, वो डिफरेंस हम्म, काफी ज्यादा हो रहा है। मैंने मतलब ठीक है, एक तरफ से रिपोर्ट है और वी रिस्पेक्ट दैट, उनका एक अच्छा वाइड रेंज डाटा है, ऑल गुड, लेकिन दूसरी तरफ से एक ये भी आंखों के सामने देखी चीज है कि पीपीसी की कॉस्ट जो है वो क्रेजी बढ़ रही है। अच्छा, अभी $1 थी मार्च में, और पता चला ये 3 $3.5 पे चली गई है नवंबर में, सितंबर में, तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रही है। तो इसमें इसको कैटर करने के लिए एक वन वर्ड चीज नहीं है। इसको कैटर करने के लिए ना मैंने पीछे पोस्ट भी की थी अपने अपने पेज के ऊपर कि देयर आर मल्टीपल स्ट्रिंग्स, और हर स्ट्रिंग की तारों को थोड़ा 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 हिला के एक एक कंबाइंड कंपाउंड इफेक्ट को अचीव किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक 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 टर्म है जिसको मैं यूज करता हूँ, डिजाइन स्पेसिफिक कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, आप एक एक प्रोडक्ट कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल डिजाइन है ना, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल डिजाइन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्क्विशी स्ट्रेस बॉल। अब स्क्विशी, हर स्ट्रेस बॉल स्क्विशी नहीं होगा, कुछ जो है वो सिंपल स्ट्रेस सही। के लिए होंगे, कुछ कुछ एनिमल टॉय शेप होंगे, कुछ होंगे। अच्छा, जब हम पर्टिकुलरली इसको देखते हैं, अगर कोई ब्रांड ऑडिट के लिए आता है या हम भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो जो भी हमने डिजाइन पकड़ा है उसके डिजाइन स्पेसिफिक कीवर्ड्स कितने हैं। होता क्या है, आपको उन जब आप उन कीवर्ड्स पर टारगेट कर रहे होते हो ना, तो बिकॉज ऑफ Amazon's रेलेवेंसी एल्गोरिदम, ठीक है, ये चीज आ जाती है कि Amazon उन कीवर्ड्स पर आपके डिजाइन को प्रेफरेंस देता है एज कम्पेयर टू एनी अदर डिजाइन, तो आपको एक काइंड ऑफ बिल इम्यूनिटी मिल जाती है। तो एक अच्छा खासा ना आपको उधर इंगेजिंग सीपीसी मिलेगी, कमाल का भला का आपको उधर कन्वर्जन मिलेगा, और स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक अच्छी खासी गेम बन जाती है। अच्छा, दूसरा अगर मैं मोटी मोटी बात करूं कि कैंपेन स्ट्रक्चर में डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन वी हैव शिफ्टेड कंप्लीटली टू वन कीवर्ड पर कैंपेन ड्यू टू मोर प्लेसमेंट अथॉरिटी। उसमें प्लेसमेंट में ज्यादा एक स्पेसिफिसिटी और जो वेगनेस है वो चीज खत्म हो जाती है। थर्ड नंबर पर, इन एडिशन टू ऑल दिस, जो 15 20 30 छोटी छोटी चीजें होंगी कि पीपीसी में ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, इसके साथ अभी हम पूरा एक एक चीज चला रहे हैं जिसमें आई वोंट से कि ये लाजमी है, ठीक है, हम्म, ग्रोथ के लिए, या ये अगर ये चीज नहीं करोगे तो सिर्फ पीपीसी के थ्रू आप लॉन्च नहीं कर सकते, रैंक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी का कुशन ही प्रोवाइड करता है। अगर मैं उसको आपको थोड़ा सा उसका जिस्ट दूं, बेसिकली
एक पूरी जो है ना हम एक होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना। हम बेसिकली यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है वो इसको एक मैग्नीट्यूड में बनवाते हैं। फॉर एग्जांपल 20 30 40 पीसेस जो है ना एटलीस्ट। फिर उसके बाद रेलेवेंट ऑडियंस से मुराद ये है कि जो आपकी जो प्रोडक्ट की नीश है उसमें जो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं उन के थ्रू उस कंटेंट को या उन्हीं को का बना के कर दो, या हमने ये जॉइंट ब्रांड्स करके है या बिली है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप यूजर जनरेटेड कंटेंट बना सकते हैं। वो कंटेंट उनको शेयर कर दिया कि अच्छा भाई अपलोड करो, और उनसे कंटेंट को शेयर करने की अथॉरिटी भी दे दी। और अपने इंसर्ट कार्ड पे भी कस्टमर को बताया कि इफ यू नीड डिस्काउंट तो हैशटैग डालो हमारे ब्रांड का और यूजर जनरेटेड कंटेंट शेयर करो। तो उससे क्या चीज चलती है, फिर उसके बाद हम उसी कंटेंट को जो जो बंदा उस पे एंगेजमेंट शो कर रहा होता है उनको पिक्सलेट भी कर लेते हैं, उन सही। कंटेंट को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू शेयर भी करते हैं। तो एक कंटेंट की 3 4 बार साइकिल घुमा रहे हैं। होता क्या है, डाउन द रोड 3 से 6 महीने में हमारे ब्रांड की एक ऑर्गेनिक डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। और वो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक डिमांड है तो लोग अमेजोन पे जाके सर्च करते हैं। अमेजोन पे आपके ब्रांड का कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी एक हद तक बढ़ जाता है। उससे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं, वो ऑर्गेनिक ऑर्डर आपकी रैंकिंग को सपोर्ट करते हैं और स्टेबिलिटी आती है। और उसके चक्कर में आपकी अमेजोन की पीपीसी की कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो एक पूरा एक मैकेनिज्म बना के सपोर्टिव है सेंस जिसको चला के पुश दिया जाता है। लेकिन अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट दैट सिंपल जैसा 2020 या 2021 में था कि आओ एग्जैक्ट मैच के 4 कीवर्ड को टारगेटिंग करो, दबा के बजट लगाओ, टॉप पर चले जाओ। सही। दैट इज नॉट द केस सिनेरियो। जिस तरह मैंने कंपोनेंट आपको डिजाइन स्पेसिफिक का बताया, एक मैंने आपको पूरी ये यूजीसी यूजर जनरेटेड कंटेंट की फनल बताई। इसी तरीके से बहुत ज्यादा अब जरूरत है कि व्हाटएवर डिजाइन यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल या जो भी आप कस्टमर को दे रहे हो, दैट शुड हैव अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जिसको आप कैश आउट करा सको। और अगर और अभी मजे की बात, इट्स नॉट लाइक कि आप के लिए जरूरी है अगर आपने एडवर्टाइजिंग इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट से बचना है, ये चीजें ये बहुत कॉमन एक पैटर्न है जो मार्केट कर रही है स्पेशली चाइनीज सेलर। मतलब लोग इफ ऐसी है। यू आर नॉट तो आपको बीट कर देंगे आपके कंपैरेटर। वो बेटर प्राइसिंग, बेटर क्वालिटी, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, डिफरेंट डिजाइन्स वो मार्केट में आते जाते हैं। पहले ये साइकिल चलता था 2 साल 2.5 साल के बाद आ रहा है। अभी हर साल डेढ़ में मैक्सिमम आपको नए डिजाइन आते हैं जिनकी कन्वर्जन, जिनकी रैंकिंग पिछले डिजाइन से बेहतर है। तो यू नीड टू कीप ऑन डूइंग द डिजाइन डेवलपमेंट। मेरी नजर में ये बड़ी बिग थिंग है, हाईलाइटेड थिंग है कि अब आपके प्राइवेट लेवल में ये चीज कंपलसरी हो चुकी है कि यू स्पेंड कंसिस्टेंटली ऑन योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट मींस आपकी जो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है आप उसके डेवलपमेंट पे स्पेंड करें। ये चीज एक जरूरी हो चुकी है। इन चीजों को बेहतरीन। मिला के जो ना आप पीपीसी का जो एक वो हाइप है उसको एक टक्कर देते हो। नॉट विद द वे कि मुझे 4 पीपीसी की कमाल की टेक्निक्स आती है और मैं जीत जाऊंगा। हाँ पीपीसी की बिल्कुल। उसी की चलती हैं जिसके पास प्रोडक्ट क्लाइंट लेके आता है बड़ी प्रोडक्ट लाजवाब। ऐसी है, ठीक है ना? ऐसी है। अगर चीज फेल बिल्कुल। है तो फिर नहीं। सही। हाँ, अब इसकी इसकी डेप्थ में अगर हम अभी और जाएंगे तो फिर वो सेशन बहुत लंबा हो जाना है। अच्छा, यहाँ आप नहीं से जाना। एक एक न्यू साइड पे ज़रा थोड़ी बात कर लेते हैं कि अच्छा, स्टार्ट में हमने कल्चर देखा था कि सर्विसेज की तरफ अब आ जाते हैं थोड़ा, कि सर्विसेज में क्या चल रहा है। तो स्टार्ट में कल्चर था कि हर बंदा जो है वो A to Z एक्सपर्ट है और वीए है, और वो हायर हो रहा है और सर्विसेज दे रहा है हर चीज़ की। रिसेंटली अभी जो शिफ्ट आया है वो ऐसा है कि मोस्टली अगर फॉरेन इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं वो हायर कर रही हैं तो फॉर अ स्पेसिफिक रोल बंदे हायर कर रही हैं। तो इससे एक जो जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि मोस्टली जो सर्विसेज का गेम है वो इन अ सेंस स्पेसिफिक साइड, डोमेन साइड ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप पीपीसी एक्सपर्ट हैं और आपकी उसके अराउंड एक्सपर्टीज़ हैं तो चांसेस हाई हैं कि आपको उसी में ही जॉब मिले, रिमोट जॉब। और अगर आपकी एजेंसी है तो आपको जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं वो आपको एज एजेंसी पार्टनर अपनी पीपीसी या वो साइड मैनेज करने के लिए हायर कर लें। तो सर्विसेज का जो पार्ट है वो आपकी नज़र में उसमें क्या शिफ्ट आ रहा है और किस तरह से चीज़ें शेप हो रही हैं वहाँ पे? डेफिनेटली नीश डाउन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेशली ये जो एग्रीगेटर्स का मार्केट में बूम आया,
और बड़े एक एक अच्छे टाइम पे आया कि जब अमेजोन से रिलेटेड जो हम बात करें ए टू जी का कंसल्टेंट या ए टू जी का वर्चुअल असिस्टेंट जो भी एकदम दे दें, वो शोड आ चुका था। और उसके साथ साथ ही ये एग्रीगेटर वाली चीज उठी। एंड डेफिनेटली जब आप बड़े स्केल पे जा रहे होते हो तो डिपार्टमेंट बनते ही बनते हैं। तो उसमें नीश डाउन करना वो जरूरी है आज के दौर में ग्रो करने के लिए, नो डाउट इन इट। जिस तरह आपने आपसे मेरी गपशप लगी, आपने अपना बताया, तो हाँ बड़ी कमाल की नीश है, मतलब बेहतरीन है। लोग अभी ज्यादातर यहाँ पीपीसी में हैं। मुझे मुझे ये नजर आता है, अगर मैं एक ओवरऑल डाइवर्स किस्म का ओपिनियन दूं मल्टीपल हम्म। चीजों को कवर करते हुए जो पाकिस्तान में एजेंसीज की चीजें चल रही हैं, मेरी नजर में ए टू जी एजेंसीज इस टाइम पे बहुत कम है या बहुत नायाब हो चुकी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप 5 गिनने जाओगे तो तीसरे के ऊपर आपको शायद कोई नाम मिलेगा। लोग ए टू ऐसे। जी लॉन्च की तरफ अब जा ही नहीं रहे, ठीक है। एक तो डेफिनेटली उसमें मतलब एक तो है ठीक है नीश डाउन हो रहा है। दूसरा, इफ यू कंपेयर टू थिंग्स, एक मैंने नीश डाउन होकर स्पेसिफिक काम करना है, दूसरे नंबर पर मैंने किसी को ब्रांड लॉन्च करवा के देना है। तो नीश डाउन में प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स बहुत ज्यादा है। आपने ए बी सी अप्लाई करना है तो डी आउटकम आ जाएगा। ऐसी है। जो पहले ए टू जी चलता था उसमें काफी चीजें मार्केट डिपेंडेंट थी। फॉर एग्जांपल मेरे सप्लायर ने कोई गड़बड़ कर दिया है, मेरा सामान जाके फंस गया है, मैं मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट महंगी होगी, अच्छा भी लड़ाई है। ब्रांड को लॉन्च करवाना इज स्टिल अ हेल ऑफ अ टास्क एज कंपेयर टू किसी एक पर्टिकुलर नीश को परफॉर्म करना। एक चीज जिसने उस तरफ शिफ्ट करवाया कि नीश ना हो। दूसरी चीज इजी टू मास्टर है, क्योंकि द पेस जिस तरीके से डेवलपमेंट्स या अपडेट्स आ रही हैं मार्केट में, तो अगर आप कहते हो कि अच्छा भाई मैं पूरी होलिस्टिक कवरेज दूंगा, तो उसमें अप टू द मार्क या थॉट लीडर रहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। एज कम्पेयर टू दैट, अगर आप नीश डाउन कर लेते हो तो अपनी जो भी एक पर्टिकुलर नीश है उसमें कमांड रखना, उस पर थॉट लीडर रहना कंपैरेटिवली इजी है। अच्छा, थर्ड नंबर पर क्योंकि ये जो नीश डाउन आप कर लेते हो, इसका रिवॉर्ड या सॉरी इसका आप कह लो, इसका टारगेट आपका जो क्लाइंट है वो या एग्रीगेटर्स हैं या बड़े ब्रांड्स हैं जो एटलीस्ट जो है वो हाफ अ मिलियन या मिलियन पर मंथ तो कर ही रहे हैं रेवेन्यू में, तो पे स्केल तो ज्यादा अच्छा है। इधर आप ऐसे ए टू बिल्ड जी करोगे स्क्रैच से। हाँ, स्क्रैच वो बंदा कहता है मैं खुद अभी 1.25 साल बाद जाके कमाऊंगा या साल बाद जाके कमाऊंगा, मैं तुम्हें कैसे $1000 2000 3000 दे दूं। तो ये तीन चीजों के चक्कर में आई सी के, हाँ मतलब देखो स्टार्ट करना जहां पर किसी को गैप मिलना वो कर ले, वो ए टू जी में कर ले, वो निश में कर ले, कुछ कर ले, लेकिन इवेंचुअली योर एजेंसी विल हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल कैटलॉग मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट, डीएसपी का लिटरली एक डिपार्टमेंट है। ऐसी ऐसी एजेंसीज है जो 200 300 क्लाइंट सिर्फ डीएसपी के देखनी है पाकिस्तान में बैठ के, ऐसी ठीक है। है। पीपीसी का एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। अच्छा, फिर आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आ जाता है, फिर आपका और 10 चीजें आ जाती हैं कस्टमर जिसमें सपोर्ट है इसमें, एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इसमें भी। फिलीपींस ने मोस्टली क्रॉस कैप्चर किया हुआ है। क्रॉस मार्केट प्लेस एक्सपेंशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पूरा डिपार्टमेंट होता है जो इसके ऊपर बैठ के रिसर्च करता है कि अच्छा भाई मार्केट में हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या नए डिजाइन आ रहे हैं जिनको लेके करना है, ठीक है। नीश या ब्रांड एक्सपेंशन के ऊपर स्ट्रेटजीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं। फिर उसके बाद अमेजोन के ब्रांड को स्पेसिफिकली ऑफ अमेजोन लेके जाना है, एक्सपैंड करना है, बिकॉज एक पाथवे है ना, यू स्टार्ट विद द अमेजोन ब्रांड, ठीक है, पीपीसी चल रही है और आपका जो एडवर्टाइजिंग पार्टनर है वो आपको कहता है नो नीड टू गो आउटसाइड, लेकिन एक विजन होता है ब्रांड्स का कि इधर से यू नीड टू एक्सपेंड डी टू सी, जहां पर आपके ब्रांड की लॉयल्टी बिल्ड हो। देन यू कैन टारगेट द रिटेल साइड जहां पर असल पैसा है, जो स्टिल 85% ऑफ द कॉमर्स है। तो उसके लिए फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली सर्विसेज हैं जो अमेजोन से डी टू सी की तरफ लेके जाती हैं, एंड देन देयर आर सर्विसेज जो रिटेल में एंट्री करवाती हैं। तो मतलब फ्यूचर हम्म। ये है कि एक बड़ी एजेंसी और उसके अंदर ये 15-20 डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट की अपनी बिजनेस डेवलपमेंट का वो डिफरेंट पिच कर रहा है, डिफरेंट उसका एंड यूजर है या टारगेट कस्टमर है, उसकी लर्निंग R&D डिफरेंट चल रही है, ग्रोथ डिफरेंट हो रही है। तो इवेंचुअली ये चीजें सारी आके इस तरीके से जम होगी, और बेहतरीन है। कॉर्पोरेट की शक्ल तब जाके निकलेगी जिस तरीके से इस टाइम पे पाकिस्तान में आईटी कंपनीज क्या है ना, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तब आपका बिल्कुल बिल्कुल। कैरियर प्लान होगा, तब आपके जो है ना वो रेवेन्यूज होंगे, साल के गोल्स होंगे, और आप देखोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है उस वे में बिल्कुल। जाके।
और इसी तरह अगर हम जो हमारे इंटरनेशनल फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट्स भी होंगे, तो उनकी अभी वो लेट्स से स्मॉल एसएमई लेवल पे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर एक स्ट्रक्चर में आ रही है। तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा पूरा ब्रांड चला रहा है, क्योंकि वो अब प्रॉपर हायरिंग कर रहा है कि पीपीसी है तो वो एक एजेंसी या तो संभाले, या अगर वो टीम रख रहा है तो वो क्वालिटी के बंदे अपनी एक टीम बना के उसके अंदर फिट करेगा, फिर कस्टमर सपोर्ट और इस तरह से सारे डिपार्टमेंट्स। तो अगर एज अ सर्विसेज एजेंसी आप एक साइड को अप ले जाओ और उस साइड में केस स्टडीज बना के पिच करो इन कंपनीज को, तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि यार ये इस स्पेसिफिक नीश का मास्टर है और इसको हम अ, इस काम के लिए परफेक्ट बंदा हायर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपने उसको एक सम अप कर दिया कि किस तरह से डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक और बात बात आ जाती है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एजेंसी ग्रो करते हुए, ये तो एक हमारी बिजनेस डेवलपमेंट वाली एक साइड हो गई, उसकी अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। बट अगर हम सम अप देखें तो पाकिस्तान में एजेंसीज के दो तीन इश्यूज हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हायरिंग का मसला है। अगर आप हायरिंग की तरफ जाते हैं तो आपकी मार्केटिंग डाउन आ रही है, और मार्केटिंग से अगर डाउन वहाँ पर आप जाते हैं तो कोई और साइड। तो इस इसके अराउंड आप कुछ हमारी जो डिस्कशन हुई थी उसकी कुछ सॉल्यूशंस और मेन पॉइंट्स वो ज़रा यहाँ पे ऐड कर दें तो बड़ा एक बेहतरीन हो जाएगा। 15 मिनट खा जाऊंगा, एंड हो जाएगा हाँ ये हाँ, सही है, 15 मिनट है आपके पास। 15 मिनट है, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक डेफिनेटली रोल होता है, आप कह लो टेक्निकल एक्सपर्ट का। आप पीपीसी के एक्सपर्ट हैं, आप सप्लाई चेन के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आपको आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं, आप ब्रांड एक्सपेंशन के एक्सपर्ट हैं, एक वो चीज होती है। अच्छा, वो जो है ना वो एज अ फ्रीलांसर कह लो या आप जॉब कर रहे हो, वो चीज है। एक ये भी रीजन आप ऐड कर लो क्यों जो है वो पूरा ए टू जी सर्विस देना, क्योंकि आपने चार बंदे रखने सिखाना है एज कम्पेयर टू डैट किसी एक जॉब रोल में जाके किसी एग्रीगेटर या बड़ी कंपनी में हायर हो जाना। क्योंकि तब आपको एक स्किल चाहिए, दैट इज जो भी एक पर्टिकुलर जेडी के लिए आपको हायर किया जा रहा है, वेदर इट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वेदर इट्स एडवर्टाइजिंग, डीएसपी, कुछ कह लो वो है। जब आप बात करते हो ना एजेंसी, तो ये तो है ही हम्म। है। अच्छा भाई, मैंने अपनी स्किल में जो है वो कंपेरेटिव रहना है, मैंने अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है, मैंने राइट बंदों से नेटवर्किंग रखनी है, मैंने प्रॉब्लम फेसिंग या प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मेरा एक कम्युनिटी, एक नेटवर्क होना चाहिए। आप इस तरह की चीजें कर रहे हो, ठीक है। इन एडिशन टू दैट जब आप बात करते हो ना एजेंसी, तो वो इक्वल टाइम टेकिंग एक पूरा जो है वो रोल है, पूरी जेडी है, पूरा काम है। अच्छा, उसमें क्या होता है, मैं इसको इस तरीके से इजीली देखता हूँ कि जो बंदा एक इंडिविजुअली काम कर रहा होता ना, उस सब कामों को आपने नंबर वन लोगों से करवाना है, ठीक है। अभी मैं इस पर डिटेल पे आता हूँ कि कैसे, और इस तरीके से करवाना है कि बैलेंस रहे। ये ना हो कि एक डिपार्टमेंट बहुत आगे जा रहा है तो दूसरा बिल्कुल सोया हुआ है, तो दूसरा डिपार्टमेंट बहुत आगे जा रहा है तो तीसरा बिल्कुल सोया हुआ है, तीसरा आगे जा रहा है तो चौथा सोया हुआ है। इट्स मोर लाइक के वो आपकी एजेंसी की ग्रोथ डिफाइन होगी वीकेस्ट लिंक से। वो जो कहते हैं नहीं, करी का सबसे वो कमजोर लिंक जो वही डिफाइन करता है कि आपकी करी या जंजीर कितनी मजबूत है। वो वाला कंसेप्ट आ गया। उसमें होता क्या है, क्योंकि एक एक प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन से हर बंदा गुजरता है। जिस मर्जी फील्ड की बात कर लो, वो बंदा नीश डाउन है, मतलब वो बंदा पर्टिकुलरली जो है वो फॉर एग्जांपल पीपीसी को देख रहा है या किसी भी एक नीश को देख रहा है, या वो बंदा ए टू जी प्रोवाइड कर रहा है, वो एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन वो बंदा एक प्रोसेस से गुजर रहा है, फ्रॉम डूइंग एवरीथिंग ऑन हिज ओन टू डेलीगेटिंग एवरीथिंग एंड गिविंग हिज वर्क शेप ऑफ एन एजेंसी, ठीक है। हम्म। अच्छा, जब इस तरह की बात आती है तो सबसे पहले तो रियलाइज ही नहीं होता कि की कंपोनेंट्स क्या हैं चीजों को चलाने के लिए। मतलब सबसे पहले अगर मैं मोटे मोटे तीन कंपोनेंट्स की बात कर लूं, ठीक है, वो डिफरेंट चीजें हैं कि यू नीड पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, एक ये थ्री पीस आते हैं। कुछ लेवल पे जो है वो डिफरेंट आ जाता है कि भाई सीईओ का ये काम है, वो काम है। लेकिन मैं अगर एक मोटे तरीके से पाकिस्तान के पैरामीटर में उसको तोड़ के बात करूं, बिल्कुल। तो दो चीजें आपको जो है ना वो तीन चीजें बेसिकली आपको सॉर्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले है डिलीवरी, ठीक है। ठीक है, वो डिलीवरी के बैक एंड पे आपको जो है वो एक एचआर डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चाहिए, आपको ऑपरेशंस डिपार्टमेंट चाहिए। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए आपको एसओपीज अच्छे चाहिए, आपको क्वालिटी एश्योरेंस का मैकेनिज्म चाहिए, तब जाके ये पांच चीजें मिलाओ तो डिलीवरी मुकम्मल होती है। डिलीवरी होगी। अब बेशक आप एक बंदा ये पांच काम कर रहा हो और ग्रो करते करते हर काम के लिए एक बंदा हो, इट रियली डिपेंड्स अपॉन स्केल, आपकी स्केल पे एजेंसी में काम कर रहे हो। अच्छा, ये आ गया डिलीवरी। दूसरा आपका पार्ट आ गया मार्केटिंग का।
ठीक है, मार्केटिंग में सेल्स का आपका डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का अलग है, उसमें भी इनबाउंड मार्केटिंग अलग है, आउटबाउंड मार्केटिंग अलग है। दोनों को पेसअप रखना बड़ा जरूरी है, दोनों की आपस में क्रॉस कम्युनिकेशन रखना बड़ा जरूरी है, वो चीज आ गई। अच्छा, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान की पढ़ाई में जो अमेजोन की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, थर्ड नंबर पर आपको अपनी R&D के ऊपर इन्वेस्ट करना। तो ये तीन मोटी मोटी चीजें करनी जरूरी है। अभी होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेटली हर बंदा चाहता है कि भाई मैंने जो है वो मतलब डिलीवरी डेलीगेट करनी है, मैंने टीम बनानी है। अच्छा, उसमें आते आते जो मसला आया था जी, इधर तो अवाम टिकती नहीं है। ये तकरीबन ना ना करते मेरे ख्याल से पिछले 3 साल में कम से कम भी कोई 700 से 1000 बंदा तो होगा जिन्होंने ये बात की होगी मेरे से, भाई जब टीम बनाने का तो फायदा नहीं है, बच्चे लाए सिखाए भाग गए अपना कर लिए, यार ये क्या सीन है, ठीक है। अच्छा, मैं भी जब स्टार्टिंग में था मेरी 2 दफा टीम भागी हुई है, तो हम्म। मैं खुद भी उनको ट्रेन करता था, तो मेरे लिए भी बड़ी खपत की काम थी, यार ये क्या बात हुई। टीम को ट्रेन किया तो पता चला जी वो तो आपस में रिश्तेदार थे, उन सब ने पूरी टीम निकली, मैं उधर ही रह गया, पूरी टीम सेटअप लेके चली गई और उन्होंने अपना खुद का सेटअप बना लिया, यार ये क्या बात है। तो उसमें मोटी मोटी बात जिस तरह मैं कल आपसे भी डिस्कस कर रहा था, मैं अगर देखूं अपने एंड पे तो मैं 2 हायरिंग्स एक एजेंसी में सबसे पहले करूंगा, नो ब्रेनर है मेरे लिए। डेफिनेटली मैं एजेंसी के स्टेज पे जाए तब बनाऊं जब मैं कुछ सरप्लस कैश जनरेट कर रहा हूं। अगर मैं सरप्लस कैश ही नहीं जनरेट कर रहा तो फिर तो मुझे अपने स्किल को एनहेंस करना चाहिए, ना ऐसी कि है। एजेंसी को करना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट तय हो गया। अच्छा, जब मैं सेविंग हो रही है, कैश बन रहा है, मैं दो जो है ना वो रिसोर्सेज को सबसे पहले हायर करूंगा। एक है HR का बंदा, ठीक है, एक है अकाउंटेंट। ये मैं आपको पोस्ट देखता था सलीम गोरी की, उन्होंने भी ये चीज लिखी कि अच्छा मैं सबसे पहले जो चीज बंदा हायर करूंगा वो HR होगा। तो मुझे बड़ा एक कॉन्फिडेंस का मिला, मैं यार ये बात बंदे की दमदार है, ओके है। बेशक अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि आप एक 70-80 हजार का रिसोर्स हायर कर लो, आप एक पार्ट टाइम गिग बेस HR हायर कर लो, मिल जाते हैं। आप जो है ना वो पार्ट टाइम गिग बेस जो है वो हायर कर लो, क्या उसको कहते हैं, एक अकाउंटेंट, ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन आप अपनी प्रोजेक्शंस प्लानिंग कैश फ्लो डे वन से बना के चलो कि भाई मुझे कितना रेवेन्यू चाहिए, मैं अगले 3 महीने में ग्रोथ क्या पर करवानी है, उस ग्रोथ को नंबर ऑफ क्लाइंट्स में तोड़ो, उसका हम्म। जाके बजट बनेगा। रिटेंशन है तो डिलीवरी टीम की तरफ, और इंक्रीमेंट चाहिए नंबर ऑफ क्लाइंट्स में तो आपका बिजनेस डेवलपमेंट टीम की तरफ, वो आपको आइडिया होगा, ठीक है। सही। तो इस चीज की क्लैरिटी बनेगी। HR के बाद दूसरे नंबर पर रादर देन बिल्डिंग अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो तब समझ आती है जब आपके कोई 30-40 से ऊपर एटलीस्ट टीम 40 बिल्ड के हो। कोर्स कर चुके हैं फिर जाके हो। अभी के लिए आपको क्या जरूरत है, यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो टीम को ट्रेन कर रहे हो, बेशक 1 to 1 करो, बेशक लाइव बैठ के करो, साथ बैठाओ कुछ करो, लेकिन मेक श्योर ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट एंड ईच एंड एवरी प्रोसेस इज डॉक्यूमेंटेड। वो वीडियो की फॉर्म में डॉक्यूमेंट हो जाए, वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड SOP बन जाए। लेकिन कोई चीज जो आपने एक बार कंपनी में बता दी है ना, दूसरी बार बतानी ना पड़े। इसलिए ना बतानी पड़े कि वो रिकॉर्ड हो चुकी है। मैंने जब तीसरी बार ट्रेनिंग की थी तब मैंने ये काम किया था कि जो भी बंदा जो भी चीज आता था मेरे पास हसीब आया। हसीब कहता है जी, नई नई टीम थी तब, 2019 की आपको बात बता रहा हूँ, जी हमने पेटेंट चेक करना है। तो मैं ये नहीं करता था आओ हसीब सेशन करते हैं, आओ हसीब सेशन रिकॉर्ड करना है, पेटेंट चेक के ऊपर पूरा सेशन दिया, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट तैयार करो, इसको गूगल ड्राइव हमारा लर्निंग हब है उसके अंदर चढ़ाओ। नेक्स्ट टाइम जो भी बंदा आता था मैं सिंपल उसको मैसेज करता था, प्लीज रेफर टू दिस फाइल, सही। ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप बूटस्ट्रैप एजेंसी कर रहे हो, जब ऐसा नहीं है कि आपने पैसा आपने लगाया और आपने एक्सपीरियंस बंदे हायर कर लिए, आप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप तो खुद एक एक्सपीरियंस बंदे हो, साथ वाला हम्म। लाओगे पूरे पैसे खा गया और वो भी निकल गया तो अल्लाह हाफिज। आपने बिल्ड करना तो ये तरीका है, एक SOP करते 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 ये 3 से 6 महीने का एक जर्नी चलता है। आहिस्ता 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 जो रीजन है जिसकी वजह से टीम आपके पास आ रही है वो कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बिल्कुल। उसमें भी जब आप टीम को ट्रेन कर रहे हो पर्टिकुलरली, HR आपके पास बैकअप पे लाइन लगा के बैठा हुआ है, एक आ रहा है जा रहा है, अल्लाह हाफिज। हमने जो है उसमें कभी भी, जिस तरह मैं कल भी आपको बता रहा था कि कैपेबिलिटी या एक्सपर्टीज पे कम फोकस दिया है और बंदे के कैरेक्टर ट्रेट्स पे ज्यादा फोकस दिया है, और ये भी मार खा के सीखा, ये नहीं कि डे वन से ऐसा था। देखा यार, अच्छा बंदा कैरेक्टर ट्रेट वाला 2 साल बाद सारे स्किल सीख गया, स्किल का चैलेंज ही नहीं था, 6 महीने में उसने कमान संभाल ली है, बला का काम कर रहा है, इसका सुकून है। अच्छा, दूसरा बंदा जो स्किल में बड़ा कमाल का रहता है, ढीला है,
सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स है, कोई मसले मसाइल हैं, चार बंदे नीचे ना हो काम ही नहीं कर सकता, तो उसकी जब इसके मुकाबले में एफिशिएंसी गेज की तो काम खराब था। तो फिर पता चला नहीं भाई, करेक्टर ट्रेड वाला बंदा पकड़ो जिसमें क्रॉस दूसरे निशेस से या दूसरी इंडस्ट्री से बंदे भी हमने किए जो एक ज्यादा हम्म। फ्रूटफुल रहे। ठीक है, मतलब ओपनली सही। बता रहा हूँ, बड़ी अनफेयर बात है, लेकिन हाँ इधर की आवाम के मुकाबले में दूसरे निशेस की आवाम मच बेटर परफॉर्म करती है। अच्छा, ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट बनता जा रहा है। अब उसके बाद फिर हमने तोड़ा रिसोर्स के काम को, क्योंकि उनको एम्पावर करना है ना, उनको इक्विप करना है पांच हिस्सों में, या पता नहीं चार या पांच में भी गिनते हैं जितने बन जाते हैं। कोई भी टास्क करना है तो उसका प्लानिंग या स्ट्रेटेजी की भाई ये करना कैसे है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए हाउ टू डू इट। ठीक है, या आप इससे भी एक स्टेप पीछे चल जाओ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, ये जी मसला है, या ये एक या मसला है, ट्रिगर पॉइंट है, नंबर वन ट्रिगर पॉइंट का है क्या मसला है। दूसरा ट्रिगर पॉइंट है, अच्छा भी एक स्टेज अचीव कर लिया है, सोर्सिंग प्रीलिमिनरी सोर्सिंग हो गई, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। या पीपीसी में टैकोस जो है वो 35 का टारगेट था, 38 अचीव हो गया, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये ट्रिगर आ गया, या कुछ कमांड आ गई किसी मेरी तरफ से, सीनियर की तरफ से, ये ट्रिगर पॉइंट आ गया, तो इसको असेस करके इसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू है जो प्रोसेस में नेक्स्ट करी जुड़ती है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना। थर्ड पॉइंट है उसकी क्वालिटी चेकिंग करना, क्योंकि डेफिनेटली जब आप किसी कोई और बंदा काम कर रहा होगा, क्वालिटी आपने चेक करनी है, क्यूए डिपार्टमेंट बनता ही बनता है, मतलब ऐसी है। बेशक एक बंदे का हो, बेशक आप चेक कर रहे हो। चौथे नंबर पर फिर उसकी डिलीवरी करना। अच्छा, सबसे पहले मीडियम बीच वाला जो एग्जीक्यूशन है उसको डेलीगेट किया, खुद ही बता रहे हैं यार इसका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या ये ट्रिगर है तो ऐसे एक्ट करना है, स्ट्रेटजी ये होगी, एग्जीक्यूट करवा लिया। वो एग्जीक्यूशन डेलीगेट किया। जब वो एग्जीक्यूशन मास्टर कर गया, फिर उसको डेलीगेट किया स्ट्रेटजी बनाना या ट्रिगर को पिक करके ये आइडिया लेना क्या मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है। और इस पूरे फेज ऑफ हिज ट्रेनिंग, या दूसरे नंबर पर फेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ आवर टास्क, हमारी तरफ से डेलीगेट हो रहा है, वो इक्विप हो रहा है। ये बेसिकली ऐसे है कि मेरे गिलास से पानी निकल रहा है, उसके गिलास में पानी भर रहा है, तो उसको ये चीज बताई कि रिसोर्स को सिर्फ एक सेकंड माजरत, सिर्फ एक सेकंड। अच्छा, उसको ये चीज बताई कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में या इस पूरे प्रोसेस में क्वेश्चन किए स्ट्रॉन्ग, रादर देन सिंपल बताने के, उसके माइंड में क्वेरीज जनरेट की, उसके माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट की, क्यों मतलब ये एक काम चीज करती है। डायरेक्ट नहीं बताई उसको, उसको एक्सप्लोर किया कि वो सवाल क्या करता है। हाँ हाँ, उसके बाद भी उसको बताया अच्छा, उसके बाद भी उसको ये बताया कि उसके बाद भी उसको सिंपली ये चीज बताई कि सवाल कि भाई तुम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी लगाओगे। अच्छा, वो गलत बताएगा, ठीक है, अब हम थ्योरेटिकली बात करें रादर देन उसको प्रैक्टिकल चीज सौंप दिया। फिर उसको ये नहीं बताया अच्छा तुमने ये चीज गलत बताई थी, असल उसका सोल्यूशन ये है, ये बात नहीं की। क्वेश्चंस के थ्रू, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू उसको लेके आए उस लॉजिकल एक प्रोसेस के थ्रू कि क्यों जो तुमने ऑप्शन बताया है ए वो गलत है और ऑप्शन बी ठीक है, थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। उससे उसके माइंड में जस्टिफिकेशन या रीजनिंग डेवलप होती है, व्हाई द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1 वाज सॉल्यूशन नंबर 1 नॉट सॉल्यूशन नंबर 2। तो उसके जब आप ये चीज कर रहे होते हो ड्यूरिंग जब आप उसको एग्जीक्यूशन करवा रहे हो, तो ऐसे ऐसे वो इस काबिल हो जाता है कि वो स्ट्रेटेजाइज भी खुद करना शुरू कर देता है। फिर सही। आप उसको कहते हो कि भाई मैं सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगा, व्हाट इज द स्ट्रेटजी, आप स्ट्रेटजी को कंफर्म करते हो, चलो एग्जीक्यूशन कर दो, ये सेकंड सुकून आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर पर इवेंचुअली आप उसकी हर गलती उसको बता रहे होते हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसका काम जो आपके पास आए, जब आप उसका क्यूए करो आपको लेस देन 5% एरर मिले। जिस दिन या लेस देन 10% आप कर लो, जिस दिन वो स्टेज पे पहुंच जाता है उस दिन उसके काम को तसल्ली से, अच्छा भाई इसको ये काम कहा और डिलीवर हो गया, अल्लाह हाफिज। तो इन सही। तीन स्टेज में बना के उसको डेलीगेट करना। अच्छा, फिर उसके बाद स्टार्टिंग में आई ट्रूली बिलीव कि डिपार्टमेंट वाला कंसेप्ट यहाँ चक्कर नहीं होना चाहिए।
स्टार्टिंग में इवन मैं जब बातचीत हुई, गपशप हुई, तो काफी बड़ी कंपनीज के अंदर ये चीज होती है कि अगर हसीब जो है वो फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन का जो डिपार्टमेंट है उसका उसका एक्सपर्ट है, और दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो कैटलॉग मैनेजमेंट का है, तो हसीब को कैटलॉग मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग दी। हसीब को 2-3 साल बाद उधर भी काम करवाया, और उसके बाद हसीब को किसी थर्ड डिपार्टमेंट में घुमाया, ताकि जब किसी एक डिपार्टमेंट में रिसोर्सेज का इशू आए, मसला आए, तो आप उसको पिकअप कर बैकअप। सको। स्टार्टिंग में डोंट बी टू प्रिसाइज, डोंट बी टू मच इनटू द नीश काम, ठीक है, मतलब सही। आप आपको डाइवर्स करके रखो। ये चीज आ गई। और अपने अच्छा, ये चीज ना स्टार्टिंग में हम करते थे जो कि मेरी नजर में गलत है। अब वी वर टू फोकस्ड, और हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, स्ट्रॉन्ग चीजें थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रूली गलत है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इन द सेंस कि यू आर डेलीगेटिंग थिंग्स, ताकि आप एक बड़े पैमाने पर आपके कंपोनेंट्स मूव कर रहे हो, और आप जो है वो खुद बैठे हो ना, ठीक है। उसमें एक टीम के साथ उनके उनकी क्वेरीज को, उनके रोड मैप को, उनकी चीजों को सुनने के लिए यू बीइंग द ओनर, वो कभी भी आपसे खुल के बात कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको डर होता है सही। अगर ये बंदा माइंड करेगा मुझे तो वैसे लगे देगा। उस केस में अगर आपका एचआर का बंदा ना, बेशक वो पार्ट टाइम एचआर का बंदा है, और 2 हफ्ते में एक बार आके टीम से बात कर रहा होता है, जो टीम उनको मसले और आपका एक वो एनोनिमस फीडबैक देते हैं, कंपनी के कल्चर के बारे में एनोनिमस फीडबैक देते हैं, बेशक वो आपकी कोर टीम ही क्यों नहीं है, वो आपके मुंह पर नहीं बात कर पाएंगे, तो उससे एक 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 जो है ना वो इम्प्रूवमेंट का एलिमेंट ज्यादा आता है। फिर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नजर आएंगी असल में कि प्रॉब्लम्स चल रही क्या है। उसके बाद जब आप उन प्रॉब्लम्स को पकड़ के टीम, ये नहीं कहोगे कि भाई किसने ये बात कही मैं उसका फिर जवाब दूंगा, ऐसी। यू मतलब इसको आप रखते हो एनोनिमस ही, और आप लेकिन टीम के पास जाकर उसको एड्रेस करते हो, और अपने आप को अकाउंटेबल सामने ठहराते हो, तो देन उत्सपा का एक एक कंसेप्ट या एक कल्चर बिल्डअप होता है कि अच्छा भाई एवरीवन इज अकाउंटेबल, इवन इवन आई बीइंग द सीईओ इज आल्सो अकाउंटेबल, तो वो चीज कल्चर पैदा होता है। तो फिर आपकी टीम जो है वो कंपैरेटिव बनती है, कैपेबल बनती है, फोकस करती है सारी चीजों में। इन सबसे पहले आपने ये चीज डेलीगेट कर दी, तो आपका भी प्राइम फोकस होना चाहिए इन द मार्केटिंग पार्ट, ठीक है। मार्केटिंग में भी जो है ना, जब मार्केटिंग और सेल्स की बात आती है, या उसमें सबसे पहले सेल्स को डेलीगेट करना, इन हाउस रिसोर्स सेल्स कभी भी थर्ड पार्टी एजेंसी से नहीं करवाना, ज्यादा बेटर करना है इन हाउस बंदा हायर हो जो सेल्स की कॉल को करे। प्रॉपर मार्केटिंग और सेल्स दोनों में से सेल्स को डेलीगेट करना है, पहले मार्केटिंग हाथ में रखनी है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग ज्यादा मुश्किल है, लीड जनरेट करना ज्यादा मुश्किल है, क्लोज करना, दोनों में से कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं, इसको पहले डेलीगेट किया जा सकता है इजीली। तो आपका सेल्स का एक बंदा आ गया जो आपकी पूरे बंदों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, 10 बातें सुन रहा है, क्लाइंट एनरिचमेंट कर रहा है, जो आपका करंट क्लाइंट ऑन बोर्ड हो चुका है उनको उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्लाइंट एनरिचमेंट कर रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, और आप जब वो मार्केटिंग कर रहे हो, फिर इवेंचुअली आप मार्केटिंग में एक एक कंपोनेंट को डेलीगेट करते रहते हो। फॉर एग्जांपल सही। आपने आउटबाउंड मार्केटिंग को डेलीगेट कर दिया, ईमेल मार्केटिंग डेलीगेट कर दी, एसईओ करवाना शुरू कर दो, बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा हायर करो, सारी चीजें। और मीनवाइल इसके प्रोसेस में जब भी आप अफोर्ड कर सको, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग ले लेके या टीम को डायरेक्ट उनके ऊपर खर्चा करो कि अच्छा भाई ये ट्रेन करो, ये कोर्स देखो, इस गलती से सीखो, ये नेटवर्किंग में जाओ, ये करो, वो करो, सारी बातें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मैं अब बेसिकली ये 15-16 मिनट लगाए हैं एक इंडिविजुअल से आपने 10-15 बंदों की टीम तक कैसे बनना है, देन अगेन, या 20 बंदों की टीम तक। जर्नी इज डिफरेंट 20 से 50-60 तक जाने का, हाँ, वो 50 फिर एक अलग है। का जर्नी डिफरेंट, 100 से ऊपर जाने का जर्नी इज डिफरेंट, तो वो इस तरीके से एक चीज होती है। सही। नहीं, इसको यहीं तक ही आज रखते हैं, और इसके आगे जो है वो नेक्स्ट लेवल जो है वो फिर, क्योंकि मोस्टली एजेंसीज अभी इसी लेवल में स्टक हैं कि 2030 तक कैसे जाना है। तो एक अच्छा, एक आपने तीन चीज़ों की बात की यहाँ पे कि एचआर हो गया आपका, और डिलीवरी पार्ट, और तीसरा आपका मार्केटिंग पार्ट। तो ये तीन है, और इन पे आपने एट द सेम टाइम सेम फोकस रख के एक एजेंसी बिल्ड करनी है, तो तभी एक सस्टेनेबल चीज़ निकल सकती है वहाँ से। तो अवैस भाई, इसको फिर यहीं पे ही क्लोज करते हैं, और काफ़ी एक अच्छी डिस्कशन हो गई एक लॉन्च से लेकर और एंड पे एक एजेंसी स्ट्रक्चर के हवाले से। तो कुछ सवाल हैं, और देख लेते हैं कि इसमें से कोई। अच्छा,
एक ये सवाल है कि फी रैंक ऑन डिज़ाइन स्पेसिफिक कीवर्ड्स, हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक कीवर्ड ऑफ द न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट इन माइक्रो नीश। उन कीवर्ड्स के साथ ऐसे मॉडिफायर्स आएंगे, ऐसे प्रीफिक्स या सफिक्स आएंगे जो आपकी प्रोडक्ट के किसी फीचर को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन स्क्वीजर की मैं बात कर रहा था, तो वुडन लेमन स्क्वीजर आपका डिजाइन स्पेसिफिक कीवर्ड है। प्लास्टिक लेमन स्क्वीजर के लिए डिजाइन स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, उसके लिए प्लास्टिक लेमन स्क्वीजर डिजाइन स्पेसिफिक कीवर्ड। आपका जो है वो मोप की हम बात कर रहे थे, तो सिंपल मोप उस पे जो एक्सटेंडेबल स्टिक के साथ है, जो नॉन एक्सटेंडेबल, दोनों आ गए। लेकिन अगर आप एक्सटेंडेबल वाला डिजाइन बेच रहे हो, फिक्स मोप का आपके उसके स्टिक का साइज नहीं है, तो एक्सटेंडेबल मोप जो है वो आपका डिजाइन स्पेसिफिक कीवर्ड है। तो उस तरीके से डिटेल आ जाती है उसकी। सही। सो अहमद मेमन भाई का एक पूरा एक पॉइंट है यहाँ पे। Multiple campaigns for the same SIN with the same targeting type, as it would lower the ad performance since both the campaigns will compete each other. नहीं अमर भाई, मैं तो वो सेम SIN के लिए मल्टीपल कैंपेन, अच्छा, विद द सेम टारगेटिंग टाइप, नहीं हम टारगेटिंग टाइप में भी अगर आता तो कीवर्ड एक बार ही आएगा ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कीवर्ड जो है वो मैच टाइप एक है एग्जैक्ट का, तो उसी में ही एक कीवर्ड तीन चार बार आ गया। कीवर्ड एक मैच टाइप में एक ही बार आएगा। इट्स मोर लाइक कि एक कैंपेन आपने एग्जैक्ट मैच की सेपरेट बनाई, जिसमें चार कीवर्ड डाले थे, चारों को सेपरेट कर दो। अच्छा, मेरी अमेज़न तो अगर आप देखें तो ये भी कहता है कि बेस्ट है कि आप 8 से 15 कीवर्ड डालें कैंपेन में, तो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन फिर आपको भी पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और रिजल्ट कहाँ पर बेहतर आते हैं, तो रिजल्ट डेफिनेटली उसमें जो प्लेसमेंट कंट्रोल मिलता है ना, वो बड़ा रिमार्केबल है, उसके थ्रू एक्सेस बड़ी अच्छी है। सही। अवैस भाई सेशन को क्लोज करते हैं। और बहुत शुक्रिया आपने आज ज्वाइन किया, और ये काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही। इंशाल्लाह अगर रिस्पांस रहा तो एक और सेशन रख लेंगे थोड़ा और डेप्थ में जाने के लिए चीज़ों पे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक चलें, है, बहुत शुक्रिया अवैस भाई, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।